Dear MSc students, I am Dr. Suman Sharma. You are welcome in today's virtual class. Before the starting lecture, I want to talk you on the guidelines issued by the government for safety from the COVID-19 virus. A campaign is running by the government, no mask, no entry. You know, students, we all are living in COVID age. There is no vaccine at present, so wear the mask and maintain social distancing for the protection. You know, students, now weather is changing, and in winter spread of infection may increase. So keep aware yourself and continue your study at home. Now we come to our topic, running on protecting groups. I think lectures are delivered on protection of alcohols, protection of carbonyl group, protection of carboxylic acid group. Now it's the last lecture on protecting groups, and it is related to protecting groups for amines. So let us start this topic. Now first of all, I would like to tell you how many different types of amino groups developed for protection. Now numerous protecting groups have been developed for amino groups, including carbamates used for the protection of amino acids in peptide and protein synthesis, and amides used for widely in synthesis of alkaloids and for the protection of the nitrogen bases adenine, cytosine and guanine in nucleotides synthesis, right? So come to the first slide. Amines. Amine protection is often an essential part of synthetic organic chemistry as well as peptide synthesis, right? The abundance of amines in organic molecules makes the use of amine protecting groups commonplace in many synthetic schemes, right? Amines are nucleophilic and basic in nature, and therefore can require protection to mask these properties during a chemical reaction, right? Protection of amines, right? This shows in the table, right? First is the reagents, second is conditions, third is protected groups, fourth is deprotection, एंड क्या क्या जो है इसके अंदर हम इसको कमेंट्स कर सकते हैं. इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर शो कर रखा है इस स्लाइड के अंदर. फर्स्ट इज दिस इज़ अ रिएजेंट. कंडीशंस इज THF at room temperature in presence of base and NaHCO3 or DMAP and TEA trimethylamine, right? Protected groups are these, and D protection with HCl, right? It's occur in mild condition and easy method costly, right? सेकेंड यहाँ पर शो कर रखा है कि रिएजेंट क्या है, BOC एनहाइड्राइड, राइट. कंडीशंस क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एट रूम टेम्परेचर और बेस एंड NaHCO3 और T, राइट, या DMAP हम यूज़ कर सकते हैं और T यानी ट्राई इथाइल एमीन. ओके. प्रोटेक्टेड ग्रुप्स आर सिमिलर एंड डी प्रोटेक्शन विद HCl, और इसमें जो है हम एनहाइड्राइड इज़ more reactive than acid,
राइट, हियर इज़ द कमेंट। थर्ड जो हमने इसमें जो है शो कर रखी है इस टेबल के अंदर, थर्ड रिएक्शन, इट्स अ FMOC, राइट। कंडीशन यहाँ पर है एक्वस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं इसमें RNH एंड FMOC, ओके। एंड डी प्रोटेक्शन है एमीन्स इन एक्वस एमीन्स की प्रेजेंस में, और यहाँ पर स्टेबल इन एसिड एंड यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। या दीज आर द कमेंट्स। नाउ लास्ट है यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड जो है हम एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं। कंडीशंस है यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिफ्लक्स या इसको हीट किया जाता है। प्रोटेक्टेड ग्रुप जो है ये है, एंड डी प्रोटेक्शन है विद NH2 और OR एंड एक्वस OR या NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। कमेंट्स क्या है इसके अंदर, इकोनॉमिक, नॉट यूजफुल फॉर 2 डिग्री amines secondary amines BCZ, it's difficult to remove R group, राइट। तो ये जो है हमने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर शो किया है कि एमीन्स का जो प्रोटेक्शन है वो किस तरह से पॉसिबल होता है, राइट। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन बाय कार्बामेट्स, ओके। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बामेट, ठीक है। प्रोटेक्शन, हियर इज द रिएक्टेंट, रिएक्ट विद RNH2 प्राइमरी अमीन्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वी गेट दिस प्रोडक्ट, राइट। फिर इसका होता है डी प्रोटेक्शन। जब इसका डी प्रोटेक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl मिथाइल अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर, तो हमको वापस से एमीन्स मिल जाते हैं, RNH2 बन जाता है, राइट। हियर इज़ द सेकेंड डी प्रोटेक्शन। इस रिएक्शन को जब हम इन प्रेजेंस ऑफ TFA DCM एट रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो भी हमको प्राइमरी अमीन मिलता है, RNH2 बनता है, ओके। सेकेंड है इसमें N फ्लोरेनाइल मिथाइल कार्बामेट, जिसको हम FMOC से भी डिनोट करते हैं, राइट। 9 फ्लोरेनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर एन अल्कोहल और एमीन्स, ठीक है। अल्कोहल और एमीन्स के प्रोटेक्शन के लिए हम इसको काम में लेते हैं। इट इज़ कैरिड आउट विद एन FMOC X रिएजेंट। X यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है या N3 हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर शो कर रखा है। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है FMOC का, फर्स्ट इट्स द रिएक्टेंट, इट्स रिएक्ट विद NaHCO3 और pyridine एंड वी गेट FMOC या 9 फ्लोरेनाइल मिथाइल कार्बामेट, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसका क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, बोथ दीज प्रोडक्ट्स, राइट। सेकेंड जो रिएक्शन है उसके अंदर यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट सेम रहता है इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड पैलेडियम और कार्बन एट 20% ACOH और मिथेनॉल एंड वी गेट सिमिलर प्रोडक्ट, राइट। इट्स अ एमीन, ठीक है। क्लीवेज पर जो है हमको वापस से जो है वो एमीन मिल जाता है, राइट। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप्स एज कार्बामेट, ठीक है ना। ये डिफरेंट कार्बामेट्स है। ये यहाँ पर हम लेते हैं कार्बोबेंजॉक्सी ग्रुप, इसको हम CBZ से भी डिनोट करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रुप इन द कार्बोबेंजोइलॉक्सी ग्रुप CBZ इज़, यहाँ पर ये हमने इसको शो कर रखा। इट्स द रिएक्टेंट, रिएक्ट विथ प्राइमरी अमीन एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। सेकेंड जो स्टेप होता है दैट इज़ डी प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट मिला है इसका जब हम H2 और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। फर्स्ट
और फिर ये फर्दर रिएक्ट करता है PHCH3 मीन्स टॉल्विन के साथ में, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, हमको जो है एमीन्स जो है मिल जाते हैं, राइट। बिकॉज ऑफ द लेबिलिटी ऑफ द बेंजाइल बॉन्ड टूवर्ड्स hydrogenolysis. Okay, the amine can be regenerated from a CBZ derivative by hydrogenolysis. यहाँ पर जो है amines का जो है regeneration हो जाता है, which is accompanied by spontaneous decarboxylation of the resulting carbamic acid, right? फिर सेकंड जो कार्बामेट है दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, इसको हम टर्शरी TBOC से भी डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटेक्शन और सेकंड होता है डी प्रोटेक्शन। यहाँ पर ये हमने अमीन्स लिए हैं, इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है टर्शरी ब्यूटॉक्सी प्रोपो कार्बोनेट के साथ में, तो यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। ये क्या है, 2 टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल ऑक्सी इमिनो 2 फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, इसको हम BOCON से भी डिनोट करते हैं। सेकंड जो होता है दैट इज़ डी प्रोटेक्शन, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, CF3COOH, ठीक है, इट्स अ पैरा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड, राइट। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप एज एमाइड्स, ठीक है। अभी हमने कार्बामेट्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि एमिनो ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब दूसरे जो ग्रुप्स हैं दैट इज़ एमाइड्स जो कि एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ऑफ द एमाइड स्टार्टिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। फर्स्ट जो है वो एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड से तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड जो है डी प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, द यूज़ ऑफ दिस एमाइड इज करेक्टराइज बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लीवेज इन द माइल्ड कंडीशंस। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर शो कर रखा है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, थैलेमाइड्स। एमाइड के अंदर क्या यूज़ किया है, थैलेमाइड्स। ये थैलेमाइड्स है, इसकी रिएक्शन जब NH2 के साथ कराई जाती है तो फर्स्ट जो है यहाँ पर हमको एमीन्स मिलता है और ये जो है ये प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसकी जब रिएक्शन हम NaBH4 और ETOH एक्वस जो है इथेनॉल के साथ में कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। फर्दर इससे जो है यहाँ पर क्या होता है, रिंग जो है ओपन हो जाती है। फिर ये फर्दर BH4 माइनस से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। OH का फॉर्मेशन हो जाता है और फर्दर जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होती है और यहाँ पर हमको प्राइमरी एमीन्स मिल जाते हैं, राइट। फिर आता है ट्राईफ्लोरोएसीटामाइड। पहले लिया था हमने थैलामाइड, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर ट्राईफ्लोरोएसीटामाइड। यहाँ पे क्या है, ये क्या इसका माइल्ड बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ BaOH होल्टॉइज यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको 18 घंटे तक गर्म करना पड़ता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, राइट। फिर थर्ड जो है यहाँ पर ट्राईक्लोरोएसीटामाइड्स और बेंजेमाइड्स, ठीक है। ये क्या है, ट्राईक्लोरोएसीटामाइड्स। इसकी रिएक्शन NaBH4 और ROH के साथ कराई जाती है तो फर्स्ट वी गेट दिस प्रोडक्ट एंड फर्दर जो है यहाँ पर जो है इसका रिएक्शन होता है और हमको प्राइमरी RNH2 एंड Cl3CHO मिल जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स टेक प्लेस, राइट। ये सेकंड जो रिएक्शन है ये क्या है, बेंजेमाइड है। इसकी रिएक्शन जब R2ALH के साथ करवाई जाती है तो फर्स्ट वी गेट दिस प्रोडक्ट एंड फर्दर जो है फाइनली वी गेट दिस एमीन्स, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो है ये पार्शियल रिडक्शन होता है, ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। फिर आता है सल्फोनेमाइड्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये है, हम जो है सल्फोनेमाइड काम में लेते हैं। इसकी रिएक्शन जो है जब इसके साथ होती है तो इन प्रेजेंस ऑफ HNu, ठीक है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट वी गेट R2N माइनस प्लस ArSO2 माइनस प्लस जो है दिस प्रोडक्ट, ओके। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फोटोकेमिकल क्लीवेज इसमें होता है, ओके। फर्स्ट जो है उसमें तो पार्शियल रिडक्शन था और यहाँ पर जो है वो फोटोकेमिकल क्लीवेज है, इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप्स बाय एमाइड्स, ठीक है। फिर आता है एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। द एल्कोक्सी ग्रुप इज रिमूव्ड बाय पैलेडियम कैटेलाइज्ड रिडक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। These reactions involve liberation of the carbamic acid by oxidative addition to the palladium. The alkyl palladium species is reductively deived by stannous phenyl silane formic acid and NaBH4, right? इसको हम आगे वाली रिएक्शन के अंदर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये रिएक्टेंट है। फर्स्ट जो है यहाँ पर जो है पैलेडियम का एडिशन होता है उस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको पैलेडियम जो है इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर हमें ये जो है प्रोडक्ट फाइनली जो यहाँ पर Bu3SNH, ठीक है, इससे जो है हम ये इसके साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ये इसका जो है फॉर्मेशन होता है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फर्दर इसका जो है हाइड्रोलिसिस होता है और वी गेट एमीन्स RNH2, राइट। तो इसको हमने जो है एक जो है आपको साइक्लिक फॉर्म के अंदर बता रखा है। कार्बमिक एसिड इज रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेटिव एडिशन टू पैलेडियम, राइट। द एल्काइल पैलेडियम इज देन reductively cleaved by stannous, ओके। तो ये जो है हमने पढ़ा है कि एमीन्स जो है उसका प्रोटेक्शन एल्कोक्सी ग्रुप से भी पॉसिबल होता है, राइट। तो आज हमने बच्चों जो है एमीन्स का जो प्रोटेक्शन है उसको डिस्कस किया है और ये जो यूनिट है जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि डिफरेंट जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।